নিজে সরকারি কল তো ঘরে বসে নিয়ে যাবো। সরকারি কল নিজের ঘরে বসিয়ে নিন। জোরে বলুন। সরকারি কলকে নিজের ঘরে ঘরে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া নেতারা। পাবলিকের কোনো জায়গা নাই ওখানে। আপনি তো অনেকদিন থেকে আসবেন বলে ঠিক কোথা থেকে এলেন? আমি আসছি ধনঞ্জয় বাড়ি থেকে। কী করে এলেন অত দূর থেকে? হাঁটি হাঁটি হেঁটে হেঁটে নয়, আর সাইকেলে কত দূর এখান থেকে? প্রায় 14-15 কিলোমিটার হবে। আচ্ছা, সকালে চলে এসছেন? খেয়ে দিয়ে 10টার সময় বেরিয়েছি। গ্রাম থেকে লোক আসবে তো আরো? হ্যাঁ, প্রচুর লোক আসবে। টোটোতে আসবে, সাইকেল আসবে, মোটর বাইকে আসবে। এই এত কষ্ট, আপনার বয়স হয়েছে, শরীর অসুস্থ, তার এত রোদের মধ্যে এলেন কেন? মানুষের জন্য হাততালি লেগে গেছে। খাবার নাই, যাবার নাই, রাস্তা নাই, ঘাট নাই, পানি নাই, কিচ্ছু নাই। কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েতের কাজ, 100 দিনের কাজ হয়। ওই কাজ 100 ফুট 100 মিটার কাজ 100 ফুট, তাও আবার বালি পাথর নাই, সব উদুরি চলে গেছে। আপনার বার্ধক্য ভাতা নিয়ে কী হয়েছে? বার্ধক্য ভাতা নিয়ে আমার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে মরা বলে পঞ্চায়েত থেকে ইয়ে করে বন্ধ করে দিয়ে দিই। সেই বন্ধ করার যখন শুনি আমি, ভিডিওকে কমপ্লেন করি। ভিডিও কমপ্লেনটা দেখে বলছে ঠিক আছে আমি দেখছি। আমি দেখছি হবে না, তাহলে আমি কোর্টে কেস করি। ভিডিও বললে না, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, দেখছি। 1 বছর টাইম নিয়েছিল, এখন আমার হয়েছে, আমি সেই ভাতা পেয়েছি। কিন্তু হিংস্রতার মনোভাবের জন্য আমার 1 বছর চলে। আপনার নাম? আমার নাম শেখ কুমারী। কোথায় বাড়ি? ধনঞ্জয় বাড়ি।
একটা জোট ছিল, অ্যালায়েন্স ছিল কংগ্রেস Left, আপকামিং যে পঞ্চায়েত ইলেকশন আসছে সেটা নিয়ে কিছু ভাবনা, সেখানেও কি অ্যালায়েন্স হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বা ভাবা হচ্ছে? হবে নিশ্চয়ই। আমরাও তো চাইবো কি ম্যাক্সিমাম ইউনিটি সেকুলার ফোর্সেসের মাঝখানে। এখনই পঞ্চায়েত ইলেকশন হবে বা হবে না কেউ জানে না, কিছু অনেক আনসার্টনিটি আছে। হ্যাঁ, কিন্তু যদি হয় তো আমি শিওর কি পার্টিরা বসে দে উইল ডিসকাস করলে কি মানে লাভ হবে, মানে সেই সাগরদিঘি মডেলটা কি ফিরে আসতে পারে বলে মনে হয়? নিশ্চয়ই হবে, লাভ হবে। সাগরদিঘিতে লাস্ট টাইম এরা জিতলো কত মার্জিন অফ মোর দেন 50,000 ভোট, এবার হারলো উইথ মার্জিন অফ মোর দেন 23,000 ভোট, মানে কত নিয়ারলি 74,000 ভোটস মুভ করেছে ওদের এগেনস্ট। क्लियर इंडिकेशन। उनके बारे में कोई अनुमान लगाना भी मुश्किल है। वो उधर किधर है, विपक्ष के साथ है नहीं है, कभी है कभी नहीं होती है। पार्लियामेंट के अंदर कुछ दिन आए साथ में सब मिलके, उसके बाद फिर वो अलग हो गए, तो अब उसका जवाब वही दे पाएंगे। অমর্ত্য সেনের জমি নিয়ে বিশ্বভারতীতে একটা টানাপোড়েন চলছে। অমর্ত্য সেন हाँ, জমি নিয়ে এটা কি বলবেন? কি বলতে এটা তো আমি ভাবছি অমর্ত্য সেনকে টার্গেট করছেন, অ্যান্ড দিস ইজ আনফেয়ার। আর যেটা হচ্ছে অমর্ত্য সেন এরকম লোক, আমি এরকম ও কিছু এরকম ফ্রড যারা এরা বলছে কি ও করেছে, এটা তো ইম্পসিবল টু বিলিভ দ্যাট হি ক্যান ডু ইট। I mean, therefore, it's completely wrong what is being done. Amartya Sen is being targeted, and we stand by him. Have you any idea regarding Abhishek Bandyopadhyay rally? No, I didn't follow. I didn't follow it. कुछ दिन के बाद साथ इकट्ठे करनी, वो बात आप क्या बोल रहे थे, क्या समझ? देखिए, पहली बात तो ये है जो हम कह रहे थे कि पहला एक है, बहुत सारे सवालें हैं जिसके अंदर बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के अंदर सहमति है। आज यही कम्युनल पोलराइजेशन या ये ध्रुवीकरण के खिलाफ, आज यही ये समस्याएं अगर आपकी है कि जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का, अब यही है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे देश के संविधान का ही सर्वनाश करने की कोशिश में है, और मुख्य रूप से जिस तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर जो एक तानाशाही का वातावरण जो आज पैदा हुआ है, इस सब के खिलाफ बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हुए। हमारा पहला यह है प्रस्ताव कि ऐसे चीज़ों पर, ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारी सहमति है, हम सब मिलकर एक राजनीतिक अभियान चलाए देश में इकट्ठा सब मिलके, और न सिर्फ राजधानी से दिल्ली से, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी जाए, तो वो स्टेट्स के राजधानियों में, और एक पॉलिटिकल कैंपेन छेड़े देश में। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। बेरोज़गारी है, महंगाई है, और लोगों के अंदर आज जिस तरीके से बेचैनी है, अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, लोगों के हाथ में खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और आपका MSME वगैरह वगैरह सब तो बंद ही पड़े हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियों में इन सवालों के ऊपर संघर्षों की रास्ता अपनाएं, जैसे हमारे किसान संघर्ष हुआ, मतलब उस तरीके से ये पार्टियां इकट्ठा होकर संघर्षों की रास्ता अपनाएं। तीसरा, हर राज्य के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर वहाँ पर तय करें कि भाजपा को हराने के लिए कौन से बेस्ट, किस तरीके से इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स हो या फ्रंट हो या कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स हो, इस तरीके की बातें ठोस रूप से हर राज्य के अंदर शुरू होना चाहिए। जैसे केरल के अंदर ये स्पष्ट है कि वो वहाँ पे वामपंथी और कांग्रेस के फ्रंट के बीच में ही होगा, और उसी के चलते हुए बीजेपी को एक भी MLA नहीं मिली वहाँ पे। और यहाँ पर यही होगा कि हम वामपंथी, मतलब आपकी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ होगी। अब जैसे तमिलनाडु में पूरे मिलाकर एक फ्रंट ही बन गई वहाँ पे, एंटी बीजेपी एंटी AIDMK के। तो इस तरीके से ये परिस्थितियाँ ठोस अलग अलग होंगी, तो स्टेट लेवल पे वो प्रोसेस इमीडिएटली शुरू करें। মমতা জায়গা স্টেট প্রসেস में आपका क्या স্টোরি সেটা কি এখানে ব্যান্ড করা হয়েছে, কি বলবেন? কি আমি জানি না কি কারণ আছে কি স্টেট গভর্নমেন্ট ব্যান করেছে, আমরাও করলাম না, আমরাও কেরালাতে করলাম না, কেন কি এটাকে I mean, people will give their own answer, which already in Kerala they are giving. कोई जाने रहा फिल्म को देखने के लिए,
तो इसलिए तो वहाँ तो वो फिल्म तो हटे जा रही है। यहाँ पर क्या कारण है वो उन्हीं को सब बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ना बैन किया ना मांगा बैन के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि बैन का कोई सोल्यूशन नहीं है। बैन करके पॉलिटिकल एजेंडा है इसके अंदर में जो बैन क्यों किया? कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ऐसे करके क्यों बैन करने का कोई बात? अब ये स्टेट गवर्नमेंट की अधिकार है, मतलब अब वो तो जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में केस, उसके बारे में कोर्ट क्या कहेगा वो देखनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी तो वो जो उनके खिलाफ जो समझते हैं कि उनका जो हिंदुत्व के खिलाफ जो भी फिल्म आता है उसके ऊपर तो बैन ही नहीं, लेकिन मतलब ऐसी वातावरण पैदा करते हैं कि वहाँ पे फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म एक्टर्स, इन सब के ऊपर वो जो है एक किस्म की हमला। जो एक्चुअल रियल केरला स्टोरी जो है वो है केरला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का पोजीशन। क्यों बताओ, इतने सालों से नंबर 1 पे है इंडिया में, लिटरेसी ही नहीं, इवन आपके हेल्थ के इश्यूज ही नहीं, आपके सैनिटेशन के इश्यूज ही नहीं, इन सब चीज़ों में। और अगर केरला कर सकता है तो रेस्ट ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर सकती है? मोदी साहब बताइए इसका जवाब। अब ये है असली केरला स्टोरी। अभी हमें तो लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतने से ज़्यादा बीजेपी हारेगी। वो वहाँ पर लोगों के अंदर जो गुस्सा है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, और जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा जिस तरीके से उन्होंने जो चलाया, और आम लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं, हर भाषण पे, और एक ऐसी हालत तक पहुंच गई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद ऐसे वहाँ पर बयान कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी हैसियत, उनकी मतलब गरिमा को जो है वो ठीक नहीं रखती। देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो इस तरीके से अब के बातें कर रहे हैं, इस तरीके से बयान दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स गए हैं, देखिए क्या बोलेगी। मणिपुर में बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके के हिंसा वहाँ पे हो रहा है और उसके ऊपर राज्य सरकार कोई काबू में लाने की प्रयास नहीं हो रही, और वहाँ पर ये सीधा सीधा एक ध्रुवीकरण है, और ध्रुवीकरण का प्रोत्साहन कई सारे लोग वहाँ पे कर रहे हैं, मेती और कुकी के बीच में। अब जो है ये बहुत खतरनाक बात है कि ये हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में इसको उस तरीके से पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। और ये हम समझते हैं कि पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ये जो ध्रुवीकरण जो करवा रहे हैं, ये पोलराइजेशन, कम्युनल टेंशंस, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ कर रही है बीजेपी। असम से शुरू करके और असम से वहाँ पे सब जगह पर अब जो है किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम नहीं तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल, वो नहीं तो कोई और डिवीजन, लेकिन पोलराइजेशन और उसके आधार पर हेट्रेड। ये हम समझते हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए सर्वनाश करने का ये एक रास्ता है, इसको हराना ज़रूरी है।